Welcome to the Future Tech Spotlight online learning platform. So हम बात कर रहे थे कि इन सुपरवाइज लर्निंग मॉडल also for any type of model, it's not like that कि okay this is my data, this is my problem statement and this is my model. ओके आपको बहुत अलग अलग मॉडल के ऊपर चेक करना पड़ेगा. इनफैक्ट what the researcher always worked on all type of model and जहाँ पे भी उसको एक्यूरेसी जनरलाइज डेटा में एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है वो मॉडल फिर वो सिलेक्ट करते हैं. ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि एक डेटा है तो उसी के ऊपर हम लोग वो मॉडल को टेस्ट करेंगे. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेटा दे आर हैविंग एंड सैंपल डेटा they are having, and based on that they will come to the conclusion or this is the model architecture I required to use. Okay, now instead of supervised learning, one of the thing is active learning. So active learning ke through bhi we can come closure with the target function. And active learning is what? To active learning generally we are using to determine the optimal generalization in the data. Okay, in the estimator. Okay, so optimal generalization of your एस्टिमेटर पैरामीटर लाइक स्लोप एंड इंटरसेप्ट. ओके, वो इतना जनरलाइज होना चाहिए कि कोई भी डेटा के लिए वो प्रॉपर एक्यूरेसी दे. ठीक है. हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग मॉडल ऑलरेडी है. तो सुपरवाइज लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं? क्लासिकल लर्निंग दैट अज्यूम द लर्नर इज गिवन अ लेबल डेटा सैंपल फ्रॉम विच इट लर्न अ मॉडल. That we know. Okay, supervised learning is having the data is already having labeled data, and that through that label we are learning and we are creating a model. Okay, but in active learning what happened? The field of active learning deal with the situation where the learner begin not with the training sample. There is no training sample, there is no data set, but instead of that it will be provided with the resource. Okay, this is the resource we are having, total resource we are having, and then active learning will obtain the required information from that resource through query. Okay, so यहाँ पे query building is the important task to get the optimum information, and based on that the system is learning. Okay, so that is what the active learning is, and it will help to identify the optimal model. Okay, so that is also one way of learning. So that is also a kind of learning where we can solve the problem for the model selection. Okay, so यहाँ पे फिर भी model selection में हर चीज में again that bias and variance का ट्रेड ऑफ वहां पे होगा. ठीक है. अगर आपकी वहां पे एक में एक्यूरेसी ज्यादा होगी तो दूसरे में एक्यूरेसी कम हो जाएगी. सो दैट थिंग विल बी देयर. ओके, ऑलवेज एक्टिव लर्निंग में भी होगा. पर हमारा क्या होना चाहिए? whenever we are calculating, whenever we are selecting any type of model, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? We want to choose a model with low test error. That's it. ओके, लो टेस्ट एरर. कोई भी आप मॉडल कोई भी एल्गोरिथम ले लो, वो एल्गोरिथम के साथ जो भी आपका रिजल्ट आता है उसके अंदर आपका टेस्ट एरर कम होना चाहिए. ठीक है. सो टेस्ट एरर का मतलब क्या हुआ? इट्स नॉट अ लो ट्रेनिंग एरर. ट्रेनिंग एरर तो आपका कम ज्यादा है वो नहीं पता, बट आपका टेस्ट एरर जो है वो कम होना चाहिए. टेस्ट एरर मींस अननोन डेटा के ऊपर जो आपने चेकिंग किया है वो आपका कम होना चाहिए. समटाइम्स व्हाट हैपन, यू आर हैविंग very high accuracy in the training data, but when you are applying that model with the testing data, that testing data is giving you poor result because the data is very much biased, or you can say overfit model. Okay, so that is what we require to check with all the models, and based on that you require to choose your model. क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है. सो ये हमें ध्यान रखना है. और उसके बाद मॉडल हो जाने के बाद, सिलेक्ट हो जाने के बाद, अब आपको चेक करना है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑप्टिमम हाइपर पैरामीटर. ओके, सो ऑप्टिमम हाइपर पैरामीटर आप कैलकुलेट करो एंड देन यू रिक्वायर टू गो फॉर योर सर्चिंग. ओके, तो उसके बाद आप अपने प्रिडिक्शन रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान दो. ठीक है. तो दैट इज व्हाट वी रिक्वायर टू डू फॉर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. So that is what with model selection. The next topic is hierarchical clustering algorithm that we have already learned in semester 1. So hierarchical clustering algorithm, hard clustering algorithm कौन कौन से हैं? किसी को याद है? Yes, anyone?
One is partitioning algorithm and another one was hierarchical clustering algorithm. Yes, anyone? Hierarchical algorithm कौन सा है? Divisive, very good Nisha. Divisive, and the second one is agglomerative, very good Akhilesh, Nisha. Okay, so these are the two algorithm we are having as a hard clustering algorithm, where we will whenever we will identify the cluster, हम लोग उसको cluster को कोई भी नया जो भी हमारा डेटा सेट आता है तो उसको हम उसमें क्लस्टर स्पेसिफाई कर देते हैं. दैट इज व्हाट द हार्ड क्लस्टरिंग इज. Suppose we are in our data set we have identified 4 clusters. Okay, so as and when some new data row comes, okay, and हमें अगर prediction करना है तो हम prediction में ये बोल देते हैं कि okay, this particular data row will go in cluster 2. It means हमने hard allocation कर दिया है cluster का. That is what the hard clustering is, and that we are doing with the agglomerative and the divisive, right? So यहाँ पे hierarchical clustering is there again in your syllabus, and the numerical also will come under this topic, hierarchical clustering, that is agglomerative. Okay, so यहाँ पे दोनों ही approach जो है agglomerative और divisive दोनों ही उल्टी method है. ठीक है, in agglomerative what we are having, we are having individual data point as one cluster, and then we are combining the cluster based on the distance, whatever the distance we have decided, and then end of the day we are getting the whole data as one cluster. So that is what the one data point to all the data points we are covering in the agglomerative. Okay, so agglomerative में क्या होगा? Agglomerative start with each object is an individual cluster, and nearby cluster are repeatedly merged, resulting in large and large cluster. Okay, सो ये यहाँ पे हमारा किस में होता है? एग्लोमेरेटिव में होता है. बट वही चीज में डिविजिव में क्या होगा? तो डिविजिव में पूरा ही उल्टा अप्रोच है. द अप्रोच इज व्हाट? इट विल स्टार्ट बाय पुटिंग ऑल द डेटा ऑब्जेक्ट्स इनटू वन क्लस्टर. ठीक है, तो सबसे पहले हम सारा ही डेटा जो भी हमारे पास जितनी रो है उसको एक क्लस्टर में कंसिडर करेंगे, एंड रिपीटेटिवली वी विल परफॉर्म स्प्लिटिंग with result in smaller and smaller cluster, and end of the day we will get one cluster per one cluster one row. Okay, so agglomerative और divisive दोनों ही क्या है? उल्टा अप्रोच है. सो agglomerative को बोल सकते हैं कि ये बॉटम अप अप्रोच है. आई गो लिटिल बिट फास्ट बिकॉज दिस वी हैव ऑलरेडी डन. ओके, so I'm just giving you overview what is there in the agglomerative. So agglomerative is having bottom up approach. Okay, so initially data items agar x1 to xn hai, so in that case we are having cluster also c1 to cn. So each and every data point is having one cluster, and repetitively we will merge the cluster. Okay, so this is what we are having. Suppose we are having this 1 2 3 4 5 6 data points. तो 6 data points individual cluster is there, 6 cluster. फिर ये दो क्लस्टर मर्ज होने पे अब हमारे पास कितने बचते हैं? 4. देन ये क्लस्टर को यहाँ पे मर्ज किया. सो दिस इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस. ओके, सो डिस्टेंस पे एंड ऑफ द डे वी आर हैविंग वन क्लस्टर. क्लियर हुआ सबको ये? सो दिस इज व्हाट वी आर मर्जिंग. नाउ देयर आर 3 अप्रोच फॉर एग्लोमेरेटिव एल्गोरिथम. ये 3 अप्रोच सबको पता है. कौन कौन सी अप्रोच है? यस, एनीवन? टू कैलकुलेट द क्लस्टर we are having 3 approach in agglomerative. Yes, anyone? Single link approach, very good. Single link. Then complete link, very good. And Sushma, average link, very good. ठीक है, so Nisha, Uzma, so single, complete and average based on the distance you are using for the calculation. Okay, so that is what the approach we are having. Okay, so what we are doing with the single link? Yes, anyone? किसी को याद है कुछ कि single link में हम distance क्या लेते थे? Single link approach में distance, minimum distance, very good Nisha. And in complete link distance maximum, and average में हम क्या लेते थे? उसका average. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द डिस्टेंस वी आर यूजिंग इन द कैलकुलेशन. ओके, तो सबको याद है?
कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। सो नाउ दिस इज सिंगल लिंक, जहाँ पे हम मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं और मिनिमम डिस्टेंस से ही पूरा कैलकुलेशन करते हैं। ये हमने देखा था, मिनिमम डिस्टेंस से हम काम करेंगे, ठीक है, फिर मैक्सिमम तक जाएंगे। और मैक्सिमम में हम क्या करते थे, मैक्सिमम से शुरू करके मिनिमम पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एवरेज। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग एवरीथिंग, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग द डेंडोग्राम। डेंडोग्राम क्या है? सो डेंडोग्राम इज नथिंग बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लस्टर, ठीक है। वॉट एवर द क्लस्टर वी हैव ऑब्टेन्ड, तो वहां उसका ग्राफिकल क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है वो क्लस्टर, यहाँ पे ये दो का क्लस्टर, ये दो का क्लस्टर, ये दो का क्लस्टर बन रहा है, फिर इस क्लस्टर का यहाँ से मिला, ये डेटा पॉइंट से मिला के एक क्लस्टर। सो उस हिसाब से जिस जैसे जैसे वो मर्ज होते जाते हैं, वैसे वैसे हम उसका क्लस्टर जो है वो बनाते जाते हैं। तो दैट इज व्हाट द डेंडोग्राम। डेंडोग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। हमने सेमेस्टर 1 में देखा था कि डेंडोग्राम कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको बनाना है, कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। बट नाउ वी विल सी हाउ दिस डेंडोग्राम इज यूजफुल टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ क्लस्टर। ओके, नंबर ऑफ क्लस्टर कितने होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, वो हमें डेंडोग्राम के आर्किटेक्चर से पता चलता है, ठीक है। ओके, सो एक क्विक एग्जांपल करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमें वापस से रिमाइंड हो जाए कि अच्छा हमने ये सब किया था। सो वन इज सिंगल लिंक क्लस्टर प्रॉब्लम। ओके, so using single and complete link agglomerative clustering to group the data described by the following distance metric and show the dendrogram। तो ये हमें दिया हुआ है, this is nothing but a distance given to us। distance क्या दिया है, a to a का डिस्टेंस, a से b का, a से c का और a से d का डिस्टेंस दिया है। सो a to a का डिस्टेंस ऑफकोर्स 0 होगा, b to b का 0 होगा, c to c का 0 होगा। सो दैट वे दिस 0। और यहाँ पे ही क्यों डेटा है, यहाँ पे डेटा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो जाता दूसरी बार डेटा देते तो, ठीक है ना। सो इसीलिए एग्जाम में यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं पे भी डेटा आ सकता है, पर कोई एक ही जगह पे डेटा होगा। और या दोनों ही जगह पे है तो आपको एक ही जगह पे उसको क्या करना है, यूज करना है। क्लियर? सो नाउ सपोज वी आर हैविंग दिस डेटा, देन वी आर दिस आर द डिस्टेंस, मींस सी टू डी का डिस्टेंस कितना है, कौन बताएगा यहाँ पे। सी टू डी का डिस्टेंस क्या है, 3। वेरी गुड अखिलेश, शुभम, शैफुल्ला। सो ये आपको डिस्टेंस दिखा रहा है। डिस्टेंस देखना आ गया तो नाउ वी कैन सी द मिनिमम डिस्टेंस किसके बीच में है, तो वो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल लिंक क्लस्टर कैलकुलेशन, तो सिंगल लिंक अगर हम यूज कर रहे हैं तो वी रिक्वायर टू यूज मिनिमम डिस्टेंस, राइट। सो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस के किसके बीच में है, कौन बताएगा। वेरी गुड सैफुल्ला, ए एंड बी के बीच में जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है। वेरी गुड जस्टिन, ठीक है। सो ए और बी को हम क्या कर देंगे, अभी मर्ज कर देंगे, ठीक है। सो ए और बी को मर्ज करने पे हमें पता चल रहा है कि ए और बी जब मर्ज हो जाता है तो ए बी से सी का डिस्टेंस कैसे मिलेगा, ए बी से डी का डिस्टेंस कैसे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ए बी से ए बी का तो 0 हो गया, पर सी और डी तो है हमारे पास, ठीक है। सो ए बी से सी का डिस्टेंस कैसे मिलेगा, कौन बताएगा यहाँ पे, कैसे ढूंढना है हमको, किसका किसका डिस्टेंस लेना है। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू, बट विच 2 पॉइंट्स, बी टू सी एंड कौन कौन से 2 डेटा पॉइंट का डिस्टेंस हमें चेक करना है यहाँ पे, ए बी सी से। हाँ, यस निशा, वेरी गुड अखिलेश। तो ए टू सी एंड बी टू सी दोनों ही चेक करना है। वेरी गुड शुभम। सो ए टू बी और बी टू सी को चेक करेंगे तो कौन सा मिनिमम आता है, ए टू बी, ए टू सी, सॉरी, ए टू सी है 4 और ए टू बी टू सी है 2, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये सब लोग ए से सी का डिस्टेंस 4 बता रहा है और बी से सी का डिस्टेंस 2 बता रहा है। तो 4 बड़ा है कि 2, सॉरी 4 मिनिमम है कि 2 मिनिमम है, 2 मिनिमम है, और इसीलिए इसका डिस्टेंस 2 आएगा। क्लियर हुआ? ये हमने ऑलरेडी किया है सैम 1 में। देन ए बी का डी से डिस्टेंस, तो ए डी एंड बी डी दोनों में से कौन सा मिनिमम है,
तो ए से डी का डिस्टेंस है 5 एंड ए से डी का डिस्टेंस 5 है और बी से डी का है 6. तो 5 और 6 में से कौन सा मिनिमम है? 5. सो 5 इज द आंसर फॉर दिस ए बी डी डिस्टेंस. क्लियर हुआ? ए बी डी का डिस्टेंस कैसे आया? 5. द सेम वे सी से डी का डिस्टेंस यहाँ पे हमें लेना है, तो सी से डी का डिस्टेंस तो ऑटोमेटिक है ही यहाँ पे 3, तो वो ही लेना है हमको. सो दिस इज माई second you can say table for and here we are merging two data points, that is A and B. ठीक है, तो यहाँ पे ये दो मर्ज हो रहे हैं. क्लियर हुआ सबको? अब उसके बाद क्या करना है? अगेन वी विल चेक फॉर द मिनिमम डिस्टेंस. तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? सेकेंड टेबल के अंदर मिनिमम डिस्टेंस क्या है? 2. ठीक है ना, क्योंकि क्या क्या डेटा है हमारे पास? 2, 5, 3. मिनिमम कौन सा है? 2. हम लोग मिनिमम क्यों देख रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, अभी मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे कंप्लीट लिंक होता तो हमें मिनिमम देखना है कि मैक्सिमम देखना है? ओके, तो मैंने कंप्लीट लिंक वाला नहीं रखा था यहाँ पे, शायद कंप्लीट लिंक इज नॉट देयर. मुझे लगा कि सबको याद है. अच्छा, ठीक है, देखते हैं हम लोग. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम सिंगल लिंक कंप्लीट करते हैं, उसी का हम ये करेंगे फिर. ठीक है, यहाँ पे क्या किया है हमने? ये डेटा है हमारे पास 2, 5, 3. मिनिमम डिस्टेंस है अभी 2. मिनिमम डिस्टेंस 2 है, तो ए बी और सी को मर्ज कर देंगे तो ए बी सी हो जाएगा. ए बी सी मर्ज करने पे ए बी सी डी का डिस्टेंस कैसे मिलेगा? तो ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा? तो उसके दो तरीके हैं. आप ये देख लो कि ए डी, बी डी और सी डी तीनों में मिनिमम कौन है, या फिर आपने ऑलरेडी ए बी तो फाइंड आउट किया ही है ऊपर, तो ए बी से डी और सी से डी ये भी चेक कर सकते हैं. वेरी गुड निशा, गुड गुड गुड, वही मुझे बताना है बाद में. ठीक है, गुड. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है? ये दोनों को मर्ज किया और मर्ज करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं? ए बी सी और डी से डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं. तो ए बी का डी से और सी का डी से यहाँ पे चेक कर सकते हैं. तो ए बी का डी से और सी का डी से डिस्टेंस है 5 and 3, और 5 and 3 में से 3 इज मिनिमम, तो ये लेंगे. अगर ऐसा नहीं करना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि ए से डी, बी से डी और सी से डी, ये तीनों डिस्टेंस ए से डी, बी से डी और सी से डी भी कर सकते हैं, और इसमें से जो मिनिमम है वो लेना है. दैट इज ऑल्सो ओके. ठीक है, तो ये मिनिमम हम लेंगे. सो दिस इज व्हाट द डेंडोग्राम वी विल जनरेट ओवर हियर. अब डेंडोग्राम कैसे बना है? तो सबसे पहले हमारा क्या मर्ज हुआ? ए बी. तो ए बी मर्ज हुआ, और वो कौन से डेटा पॉइंट पे मर्ज हुआ है? 1. 1 इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पे मर्ज हुआ है, तो इसलिए ये 1 यहाँ पे होगा. एंड इट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ 0. देन आफ्टर योर ए बी इज मर्ज विथ सी, और वो कौन से डिस्टेंस से मर्ज हुआ है? 2. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 है. ठीक है, और ये कौन से डिस्टेंस पे मर्ज हुआ? 3, तो इसलिए यहाँ पे 3 है. नाउ सपोज यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे ये 1 के डिस्टेंस पे मर्ज हुआ, यहाँ पे 4 के डिस्टेंस पे हुआ और यहाँ पे 6 के डिस्टेंस पे हुआ, तो यहाँ पे 4 और 6 होगा. क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है, सो दैट वे वी विल मर्ज द डेटा. ओके, नाउ सपोज यू आर हैविंग कंप्लीटली. ठीक है, अब तुम्हें आपको सिंगल लिंक से कैलकुलेट नहीं करना है, कंप्लीट लिंक से कैलकुलेट करना है. ठीक है, एंड दिस इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है पहला. ठीक है, सो नाउ विच पर्टिकुलर 2 डेटा पॉइंट वी विल मर्ज. तो आप मिनिमम देखोगे कि मैक्सिमम देखोगे कंप्लीट लिंक के लिए? यहाँ पे कहाँ से मर्ज करना है? मिनिमम. वेरी गुड निशा. नो शुभम, मिनिमम देखना है ऑलवेज फॉर द मर्जिंग. ठीक है, but when we are checking the distance, that time we will take maximum, minimum और average based on the algorithm. क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे आपको मर्जिंग करने के लिए ऑलवेज मिनिमम देखना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस 1 ही लेंगे, 1 पे ही ये दोनों मर्ज होंगे.
पर 1 पे मर्ज होने के बाद ए बी सी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो ए बी सी का वैल्यू होगा ए सी बी सी, तो ए से सी और बी से सी, ठीक है। सो 4 and 2, तो यहाँ पे 2 की जगह पे 4 हो जाएगा, समझ आया, ये 4 हो जाएगा, क्यों, बिकॉज कंप्लीट लिंक में हम मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। सो मैक्स डिस्टेंस इज 4 एंड दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर 4 ओवर हियर। द सेम वे इज एडी बीडी के लिए भी। सो एडी बीडी के लिए क्या होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 5। क्लियर हुआ सबको ये, या एनी क्वेश्चन इन कंप्लीट लिंक, एवरेज लिंक, and now we will check for, we are doing for the complete link, okay, single link छोड़ दो, अभी हम complete link की बात कर रहे हैं। अगर हम complete link की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो now we will check for the minimum distance for the merging। क्लियर हुआ सबको, मिनिमम डिस्टेंस फॉर द मर्जिंग। सो मिनिमम डिस्टेंस क्या है हमारा, यहाँ पे ए बी जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए बी को मर्ज कर दिया, ठीक है। सो आफ्टर मर्जिंग ए बी, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी टू ए बी इज 0, सी टू सी 0, डी टू डी 0। नाउ व्हाट अबाउट अदर रिजल्ट, सो अदर डिस्टेंस कैसे होगा, तो ए से सी और बी से सी का डिस्टेंस देखना है। सो ए से सी और बी से सी का डिस्टेंस देखेंगे 4 and 2। अगर वो कंप्लीट लिंक है तो 4 और 2 जो 2 रिजल्ट है उसमें मैक्सिमम देखेंगे। अगर वो सिंगल लिंक है तो 4 और 2 में मिनिमम देखेंगे, और अगर वो एवरेज है तो 4 और 2 का एवरेज होगा। क्लियर हुआ सबको ये, ठीक है। सो नाउ करंटली वी आर वर्किंग ऑन कंप्लीट लिंक, सो वी विल सी मैक्सिमम डिस्टेंस इज 4। क्लियर हुआ सबको ये, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। द सेम वे ए डी से बी डी का डिस्टेंस क्या होगा, तो ए डी से बी डी का डिस्टेंस है ए डी बी डी 5 and 6। सो 5 and 6 में से मैक्सिमम कौन सा है, 6, तो हम यहाँ पे 6 लेंगे, ठीक है। उसके बाद सी और डी का डिस्टेंस, सी एंड डी का डिस्टेंस तो एक ही है यहाँ पे 3, तो जो है वो ही लेना है। अब आपको क्या करना है, अब विच वन इज मिनिमम, अब क्या मिनिमम वैल्यू मिल रहा है आपको, यस कौन बताएगा मिनिमम वैल्यू क्या है। हाँ वेरी गुड अखिलेश जस्टिन, तो यहाँ पे अभी हम ए बी सी का मर्जिंग नहीं करेंगे, अब हमारे पास आती है वैल्यू सी डी की, ठीक है। सी डी को मर्ज करेंगे हम, ठीक है, सी और डी को मर्ज करेंगे, ठीक है। तो ए बी से सी डी की वैल्यू क्या आएगी, तो ए बी से सी और ए बी से डी वैल्यू क्या है आपकी, मैक्सिमम वैल्यू। हाँ डोंट फॉरगेट वी रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन सिंगल लिंक, सॉरी कंप्लीट लिंक, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर द मर्जिंग वी आर हैविंग, एंड एंड ऑफ द डे वी आर हैविंग द डेंडोग्राम, कि जहां लास्ट में ए बी और सी डी भी मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। तो फिर तो कोई डिस्टेंस नहीं बचता है, तो ये आपको कंप्लीट लिंक में करना है। पर सिंगल लिंक में हमने कैसे किया, सिंगल लिंक में हमने कैसे किया, तो यहाँ पे क्या करना है, तो 4 और 2 में से मिनिमम लेना है। 4 और 2 में से मिनिमम क्या है, ए सी बी सी, ए और ये दोनों में से 2, और ए डी बी डी में से मिनिमम कौन सा है, 5, ठीक है। और फिर अब मुझे मर्जिंग के लिए भी क्या देखना है, मिनिमम ही देखना है, समझ आया ना, मर्जिंग के लिए हम मिनिमम देखेंगे एंड डिस्टेंस के लिए मैक्सिमम। क्लियर हुआ सबको ये, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अब हमारा क्या होता है, ये मर्ज होता है ए बी सी, तो इसलिए यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे डी रह जाता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना होगा ए बी सी, तो ए बी डी और सी डी, ए बी डी सी डी ये आता है 3, मिनिमम 5 और 3 में से मिनिमम। अभी क्लियर हुआ जस्टिन, okay. So for selection, for merging we always go for minimum value, and for distance
वी विल चेक सिंगल, कंप्लीट या एवरेज, कौन सा एल्गोरिदम हम कर रहे हैं उसके बेस पे हमें डिस्टेंस लेना है। क्लियर हुआ ना सबको अभी? ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस कैन कम इन एग्जाम, हायरार्किकल एग्लोमेरेटिव एल्गोरिदम, ठीक है, एज अ न्यूमेरिकल। ठीक है, अब ये मैंने वापस से यहाँ पे इसलिए आया है बिकॉज थ्रू दिस डेंडोग्राम वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट द ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं कि इससे नंबर ऑफ क्लस्टर इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, कि कौन से क्लस्टर तक हमें उसको डिवाइड करते जाना है। ठीक है, किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए 4 क्लस्टर इज इनफ, किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए 10 क्लस्टर इज इनफ। सो कहाँ तक हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कैसे पता चलेगा, दैट वी विल सी थ्रू दिस डेंडोग्राम आर्किटेक्चर। बट जैसे हमने हार्ड क्लस्टरिंग देखा, द सेम वे वी आर हैविंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट क्लस्टरिंग। ओके, सो सॉफ्ट क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं, तो इन हार्ड क्लस्टरिंग टिपिकली अज्यूम दैट ईच इंस्टेंस is given a hard assignment to exactly one cluster. Okay, so जो भी डेटा होगा उसका एक क्लस्टर डिसाइडेड है और उसको वो नंबर दे दिया गया है कि ये पर्टिकुलर रो इज नंबर 1 इन नंबर 1 क्लस्टर, ये रो नंबर 2 क्लस्टर, ये रो नंबर 3 क्लस्टर, ऐसा हमने डिसाइड कर लिया है। ठीक है, इसका मतलब कि क्लस्टर 1 में जाने वाले डेटा का कोई चांस नहीं है कि वो नंबर क्लस्टर नंबर 2 में चला जाए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट देयर इन द हार्ड क्लस्टर। Okay, so now it does not allow uncertainty in class member or for an instant to belong to more than one cluster. Clear? तो सॉफ्ट क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ असाइनिंग अ क्लस्टर we will assign the probability for the cluster. Okay, so now suppose we are having, let's say, 4 clusters, so for each and every row we are having 4 probability फॉर दैट पर्टिकुलर क्लस्टर। ओके, कि ये पर्टिकुलर रो की क्लस्टर 1 में फॉल होने की प्रोबेबिलिटी ये है, क्लस्टर 2 में फॉल होने की प्रोबेबिलिटी ये है, 3 में ये है और 4 में ये है। नाउ सपोज वी हैव डिवाइडेड द डेटा इन द 4 क्लस्टर। क्लियर हुआ? एंड इन दैट केस द टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी द टोटल, जो 4 प्रोबेबिलिटी है उसका अगर हम प्लस करते हैं तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगी एंड दैट शुड बी इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ सबको? एंड ऑफ कोर्स वो क्लस्टर में वो पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी में अगर हमें कोई क्लस्टर डिसाइड करना है तो वो क्लस्टर कौन सा होगा, जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो। क्लियर हुआ सबको ये? सो दैट इज व्हाट द सॉफ्ट क्लस्टरिंग इज। सो सॉफ्ट क्लस्टरिंग से एक्चुअली तो हम क्या कर रहे हैं कि हम सबको प्रोबेबिलिटी असाइन कर रहे हैं। नाउ हाउ इट इज यूजफुल फॉर द प्रोबेबिलिटी, तो सपोज अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम रेटिंग लेट्स से डॉक्टर इन द एरिया, ठीक है, तो वो एरिया में सपोज 4 क्लस्टर में डेटा डिवाइड होता है और 4 क्लस्टर में कुछ सेट ऑफ ट्रीटमेंट के लिए कुछ डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो 1 क्लस्टर में अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो कि भाई यहाँ नहीं जाना है, तो आपको एक सेकंड ओपिनियन मिलता है, सेकंड क्लस्टर का डेटा मिलता है कि हाँ ये क्लस्टर नहीं तो आप ये क्लस्टर में भी उतने ही सुटेबल हो। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो वो उस हिसाब से काम करता है। दूसरा ये है कि ये आपका हिडन डेटा जो है उसको भी अनकवर करने के लिए काम आता है सॉफ्ट क्लस्टर। ठीक है, तो वो कैसे करता है वो हम देखते हैं, एंड फॉर दैट वी आर हैविंग वन सॉफ्ट क्लस्टरिंग एल्गोरिथम दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन। ओके, सो ये एल्गोरिथम के ऊपर हम लोग काम करेंगे। सो ये एल्गोरिथम क्या कहता है, इट गिव्स यू अ सॉफ्ट वेरिएंट ऑफ द के मीन एल्गोरिथम। एक्चुअली के मीन एल्गोरिथम में क्या होता है, वापस से हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे, तो के मीन एल्गोरिथम में हम सबसे पहले एक रैंडम सेंट्रॉइड लेते हैं और वो रैंडम सेंट्रॉइड से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करके, मे बी यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस, whatever the distance we have decided, based on the distance calculation we will assign the cluster and then after again we will calculate the centroid. Okay, ऐसे करते करते जब तक हमें सेम सेंट्रॉइड नहीं मिलता तब तक हम उसके ऊपर चलते जाते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सपोज फॉर द डेटा वी आर हैविंग लेट्स से 2 क्लस्टर। ओके, सो 2 क्लस्टर को हम एक रैंडम प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे। समझ आ रहा है सबको? के मीन में हम क्या कर रहे थे, रैंडम सेंट्रॉइड असाइन कर रहे थे, यहाँ पे हम रैंडम प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे एंड आफ्टर
assigning the random probability. Now we will check for the likelihood. Okay, likelihood to fall in that cluster, and then after we will again calculate the probability. और फिर ऐसे करते करते जब आपकी probability constant आना शुरू हो जाएगा तो that will be the probability to fall in that cluster. क्लियर हुआ सबको ये? So that is what we will do in this expectation maximization. Okay, so we will assume a probabilistic model of category that allow computing P of C divided by E. इसका मतलब क्या हुआ? This is the conditional probability of event E to fall in cluster C. ओके, तो CI का मतलब क्या हुआ? C1 2 3 4 हर क्लस्टर के लिए हम देखेंगे. सो फॉर एनी इवेंट क्लस्टर 1 में फॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्लस्टर 2 में फॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे. सो दैट वी रिक्वायर टू चेक फॉर ईच एंड एवरी क्लस्टर. क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है, हर कैटेगरी के नहीं ना, क्लस्टर 1 से लेके K तक हर क्लस्टर के लिए हम उसको करेंगे. ठीक है, और इसके लिए हमारा जो पैरामीटर थीटा है वो कैसे काम कर रहा है? इट इज एग्जैक्टली वर्किंग लाइक नेव बेस्ड कैटेगरी मॉडल. नेव बेस का बेस थियरम क्या कहता है? A by B is equal to D by A multiply by A. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर नेव बेस्ड मॉडल. ठीक है, एक हम एल्गोरिथम एग्जाम्पल करेंगे ना तो और डिटेल में आपको समझेगा. अभी अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो वहां पे और क्लियर समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन क्या करता है? इट्स प्रोवाइड्स अ जनरल अप्रोच टू लर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल. ठीक है, जो वेरिएबल आपको नहीं पता है वो वेरिएबल आप यहाँ पे अनकवर कर सकते हो. ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करनी है? वापस इटरेशन प्रोसेस जैसे के मीन में करते थे. ऑल द टाइम वी आर कैलकुलेटिंग द सेंट्रॉइड एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस. तो यहाँ पे भी इटरेटिव मेथड है फॉर लर्निंग प्रोबेबिलिस्टिक कैटेगराइजेशन मॉडल from unsupervised data. Here we are having unsupervised data because this is clustering, so we don't have any label data. ठीक है, so here we will assume random assignment of the example to categories and learn initial probabilistic model by estimating model parameter theta from this random label data. Okay, and उसका हम iteration करते जाएंगे. Now यहाँ पे सबसे important चीज है ये 2 step. पहला step क्या है? Expectation. That is called E step also. So what is this expectation is the computation of that cluster probability based on the event. Okay, तो ये E का event is already occurred. उस केस में उसका क्लस्टर 1 में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, for each example given the current model and probabilistically relabel the example based on the posterior probability estimations. Okay, जैसे मैंने बताया, अगर अभी नहीं भी समझ आ रहा तो ये दोनों ही स्टेप बहुत डिटेल में समझेंगे हम लोग, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल करने वाले हैं इसके ऊपर. सो यू विल गेट टू नो हाउ टू डू दिस. ओके, एंड मैक्सिमाइजेशन दैट इज सेकेंड स्टेप. जब हम एग्जाम्पल खत्म करेंगे ना तब हम वापस ये वाला पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में समझ आ क्या अच्छा ये कहना चाहते हैं. ठीक है, सो मैक्सिमाइजेशन इज द सेकेंड स्टेप, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड M स्टेप. और यहाँ पे हम क्या करते हैं? रीएस्टिमेशन द मॉडल पैरामीटर. और रीएस्टिमेशन मतलब रीलेबल क्या करते हैं? जैसे हम सेंट्रॉइड वापस कैलकुलेट करते थे ना, यहाँ पे वापस से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करना है. ठीक है, वापस से असाइनमेंट, वापस से डिस्टेंस कैलकुलेशन, वापस से सेंट्रॉइड, ये हम इटरेशन करते थे. इसकी जगह पे आप उसको ये समझो कि डिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी. क्लियर हुआ? ठीक है, सो दिस आर द एप्लीकेशन of this expectation maximization algorithm. It's filling in missing data, जैसे as I told you, uncover the hidden data. ठीक है, discovering the value of hidden variable, estimating the parameter of hidden Markov model, unsupervised learning of the cluster. ठीक है, and semi supervised classification and clustering. ठीक है, तो these are all application of expectation maximization. Okay, I can do slideshow. Okay, now before we go for this numerical, okay, we require to see the statement of this likelihood. ठीक है, ये term likelihood क्या है? So likelihood is nothing but it refers to find the optimal value for a distribution. We are talking about maximum likelihood estimation.
लाइक्लीहुड का मतलब ये होता है कि कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज द लाइक्लीहुड ऑफ द प्रोबेबिलिटी. बट मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन क्या होता है? तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन इज रिफर टू फाइंड द ऑप्टिमम वैल्यू फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अ बंच ऑफ ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट. अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि डेटा के बेस पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना है कि इसका ये ऑप्टिमम लाइक्लीहुड है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. सपोज आपके पास हाइट का डेटा है या फिर आपके पास वेट का डेटा है, ठीक है, तो और टाइम सीरीज का डेटा है, तो वो जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉल होता है ऑलवेज, ठीक है. सो दिस इज द रीजन यू वांट टू फिट अ डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड डेटा इज इट कैन बी इजियर टू वर्क विथ एंड इट इज ऑल्सो मोर जनरल, ठीक है. तो यहाँ पे आप जब भी आप डेटा के ऊपर काम करोगे तो आप एक एक डेटा के ऊपर काम नहीं कर सकते. यू रिक्वायर्ड अ जनरलाइज फंक्शन फॉर दैट, ओके. Specifically when you are working on probability distribution, PDF, ठीक है ना. प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन पे जब हम काम करते हैं तो यू रिक्वायर्ड वन फंक्शन, ओके. यू कैन नॉट वर्क ऑन ईच एंड एवरी प्रोबेबिलिटी डेटा, ठीक है. सो उसके लिए आपके पास ये ऑप्टिमम वैल्यू होना चाहिए वो फंक्शन का, और वो लाइक्लीहुड फंक्शन जो रहेगा दैट इज व्हाट द मोस्टली लाइकली सैंपल अमंग ऑल पॉसिबल सैंपल, ठीक है. वो पर्टिकुलर फंक्शन इस हिसाब से होगा कि वो आपको किस क्या प्रोवाइड करता है. तो इट प्रोवाइड्स द पैरामीटर वैल्यू दैट मेक्स द ऑब्जर्व्ड सैंपल दैट मोस्ट लाइकली सैंपल अमंग ऑल पॉसिबल सैंपल. दूसरे सारे सैंपल से ये ऑब्जर्व सैंपल मोस्ट लाइकली और मोस्ट होने के मतलब इवेंट में होने के चांसेस, ठीक है. सो द गोल ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड इज टू फाइंड द ऑप्टिमम वे टू फिट अ डिस्ट्रीब्यूशन टू द डेटा, ओके. तो डेटा के बेस पे हमें क्या करना है, एक ऑप्टिमम फंक्शन डिसाइड करना है मोस्ट लाइक्लीहुड एज अ मोस्ट लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, ठीक है. तो अभी हम सिर्फ अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो हम सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है उसको डिस्कस करेंगे, और कल हमारा लेक्चर है वापस 10 o'clock. दैट वी विल सी हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस probability अंडर एस्टिमेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, दो कॉइन से एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. तो सपोज यू आर हैविंग टू कॉइन्स A and B, ओके, एंड ईच विथ अ सर्टेन बायस ऑफ लैंडिंग हेड्स. उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, थीटा A एंड थीटा B. This is what the probability to get the value head in coin A and B. Okay. Now some database, suppose some data set is given. The data set is what, x1, x2, x3 up to xm. ठीक है. और सेकेंड कॉइन है उसका भी कुछ डेटा सेट है हमारे पास. अब यहाँ पे जहाँ पे भी वैल्यू, यहाँ पे 10010 में वैल्यू होगी दोनों में ही, एक्स ए में भी और एक्स बी में भी. वाई? बिकॉज इफ हेड इज कमिंग तो वो वहां पे 1 होगा, और अदरवाइज 0 कब होगा, जब टेल आता है, ठीक है. तो उस हिसाब से यहाँ पे कुछ डेटा सेट है आपके पास, ठीक है. तो अगर अब अभी आपको मीन वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, तो मीन वैल्यू का तो फंक्शन हमारे पास है ही. मीन वैल्यू कैसे मिलेगा, तो मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल, एंड यहाँ पे भी समेशन ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल. दैट इज व्हाट द सैंपल मीन वी आर हैविंग, ठीक है. So that way we are having this data. Now we are assuming that we are having two coins, coin 1 and 2, that is C1 and C2, और उसके साथ एक associated bias value है, that is probability of getting head, that is theta 1 and theta 2, ठीक है. तो ये दो चीज है हमारे पास, and we want to find the theta 1 and theta 2 by performing a number of trial. सो हम कॉइन 1 के ऊपर भी कुछ ट्राई कर रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं, और कॉइन 2 के ऊपर भी ट्रायल ले रहे हैं. लेट्स से कॉइन 1 को 10 बार फ्लिप कर रहे हैं और कॉइन 2 को भी 10 बार फ्लिप कर रहे हैं, एंड वी आर चेकिंग कि कितनी बार कॉइन 1 में हेड आता है और कितनी बार कॉइन 2 में हेड आता है. समझा एक्सपेरिमेंट सबने, ठीक है. तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, द एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज वी चूज 5 times one of the coin, ठीक है, and we toss the chosen coin 10 times. समझो अभी क्या किया हमने, हमारे पास कितने कॉइन है, 2 कॉइन. अब 2 कॉइन को आंखें बंद करके आपको सिलेक्ट करना है उसमें से कोई भी एक कॉइन,
ठीक है, तो जब पहली बार आपने कॉइन को सिलेक्ट किया तो पहली बार कौन सा कॉइन सिलेक्ट हुआ? बी। कौन सा सिलेक्ट हुआ? बी। अब जब आपके पास कॉइन बी सिलेक्ट हो जाता है, नाउ यू रिक्वायर टू टॉस द चोजन कॉइन 10 टाइम्स. So now you have tossed this B coin for the 10 times and these are the result. क्लियर हुआ? तो ये रिजल्ट है आपके पास, ठीक है, कि जब हम कॉइन B को हमने टॉस किया तो पहले हेड आया, फिर 3 बार टेल आया, फिर 2 बार हेड आया, तो दिस इज द पैटर्न. ओके, देन आफ्टर अगेन वी परफॉर्म दिस टास्क कि हमने क्या किया, वापस 2 कॉइन को वापस से इकट्ठा करके अब उसमें से एक कॉइन वापस चूज किया. सो कॉइन सिलेक्शन, तो सेकेंड टाइम कॉइन कौन सा चूज हुआ है? ए. नाउ आफ्टर सिलेक्टिंग कॉइन ए, अगेन जो सिलेक्ट हुआ उसको 10 बार क्या करना है? टॉस करना है. तो 10 बार टॉस करने पे ये रिजल्ट आया. ये सेम प्रोसेस हमें कितनी बार करनी है? 5 टाइम्स. सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, वी विल चूज द कॉइन फ्रॉम दिस गिवन 2 कॉइन्स, और जो भी सिलेक्ट होता है उसको 10 बार टॉस करना है. तो पहले कॉइन बी सिलेक्ट हुआ, उसको 10 बार टॉस किया, फिर दूसरी बार ए सिलेक्ट हुआ, उसको 10 बार किया, फिर वापस ए सिलेक्ट हुआ, वापस 10 बार. तो सेम वे वी आर हैविंग दिस रिजल्ट. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन कॉइन ए? बहुत इजी है उसको कैलकुलेट करना, ठीक है. कॉइन ए का यहाँ पे θ1 क्या है आपका? अज्यूम द बायस ऑफ कॉइन 1 इन θ1. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विथ कॉइन 1, तो वो तो बहुत इजी है. नंबर ऑफ हेड यूजिंग C1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल फ्लिप्स यूजिंग C1. तो C1 कौन सा है आपका? ए. ठीक है, ए में कितनी बार हेड आया है, ठीक है ना, एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स कितने हुए हैं? तो टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स कितने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स आर 30 हुआ ना टोटल. 10 10 10 30 हुआ, 24 प्लस 6, और उसमें से हेड कितने हैं? 24. देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि पहली बार में बी कॉइन है और उसके अंदर 5 हेड और 5 टेल है. सेकेंड वाले में 9 हेड और 1 टेल, ये 1 ही है सिर्फ. और यहाँ पे तो दिस वे वी हैव टोटल इन कॉइन 1 टोटल 24 हेड एंड 6 टेल. इन कॉइन बी 9 हेड एंड 11 टेल. क्लियर हुआ? तो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड फ्रॉम कॉइन 1 and it is very easy for coin 2 also. Why this is very easy? Because we already know which data is for coin 1 and which data is for coin 2. ठीक है, ये हमें पता है कि कौन सा डेटा किसके लिए है, इसलिए वो इजी है. समझ में आया? अगर हमें पता ही ना हो कि ये डेटा कॉइन 1 से आया है या 2 से आया है, ऐसा कुछ रिजल्ट हो तो, ठीक है, ऐसा कोई डेटा हो तो, कि हमारे पास ये डेटा है सपोज, ठीक है, एंड so assume more challenging problem. We do not know the identity of the coin used for each set of toss. So now in that case हम कैसे find out करेंगे ये probability of getting head in coin 1 and probability of getting head in coin 2, and this we can do through एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम. ठीक है, तो ये कैसे करना है वो हम कल देखेंगे. ठीक है, समझ में आया? हमारा एक्सपेरिमेंट समझ में आया? अभी तक हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम बोल रहे थे कि प्रॉब्लम कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, और उसके ऊपर अब हम काम करेंगे कि अब हमें इसको कैसे करना है. जैसे हमने पहले भी बात की थी कि एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन इज ऑलवेज टू अनकवर द हिडन वैल्यू और हिडन डेटा. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास हिडन डेटा क्या है कि ये डेटा तो है हमारे पास, पर ये हर कोई रो कौन से कॉइन से आ रही है हमें नहीं पता. ये कौन सा कॉइन ब्लू वाला है तो कौन सा कॉइन फ्लिप किया है वो हमें नहीं पता. ठीक है, सो उसके लिए आपके पास उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम सॉफ्ट क्लस्टरिंग में देखेंगे. ठीक है, Thank you, everyone.